Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, and your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very important chapter, and that is motion in a straight line. The concept of this chapter is going to be used frequently in almost all the physics chapter. So I can say this chapter is a very basic chapter of the your physics. So what we had learned in this chapter so far. So initially we had started from the motion. So we had learned that the motion is a relative concept. If any object changes its position with respect to the other object, then it is said to be in the motion. Then we derive the concept of the frame of reference. The place and the situation from which the observation took an observation is known as a frame of reference. Mathematically, it is represented by the coordinate system. Mathematically, it is represented by the XYZ coordinate system. And all the position are considered to be with respect to the origin. Then after we discuss the path length and the displacement, we also discuss the average velocity and average speed. We had learned that the average velocity can be positive, negative or zero, while average speed is always positive. We also had learned that the average speed is either equal to the average velocity or greater than average velocity. Then after we discuss the instantaneous speed and instantaneous velocity, we had also discussed the graph of the position versus time. So from the position versus time graph, we come to know what is the velocity, whether it is a constant, it is a velocity is constant, it is a positive or negative or zero. We can get the idea about the velocity by the position versus time graph, because the slope of the position versus time graph gives us the average velocity, and the slope of the tangent at any point of the graph will gives us the instantaneous velocity. I'm talking about the position versus time graph. But the same thing, if we apply the similar concept, if we apply the similar concept for the velocity versus time graph, so whatever the conclusion we are able to obtain for the velocity from the position versus time graph, the same concept, same conclusion we can obtain for the Accelerations. acceleration in the case of velocity versus time graph. We also come to know how to check the acceleration is positive, negative or zero from the position versus time graph. पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा वेलोसिटी का तो सब कुछ मिलता था, बट क्या कोई इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन के बारे में मिल सकती है? यस, मिल सकती है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ को देखने से हमको वो टेंजेंट अलग अलग मोमेंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के द्वारा हमको ये पता चल जाएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, so that we get the idea about the sign of the acceleration. तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के द्वारा वेलोसिटी का तो सब कुछ मिलता था, बट एक्सेलरेशन का भी साइन मिल सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, वो पता चल सकता है फ्रॉम द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने ऐसा भी डिस्कस किया, ऐसा भी पढ़ा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका अगर एरिया फाइंड करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया अगर फाइंड करते हैं तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट भी देगा, डिस्टेंस ट्रैवल भी देगा। अगर ऊपर का एरिया पॉजिटिव एंड नीचे का एरिया का नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेके हम उसको एडिशन करते हैं, उसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तो अगर एल्जेब्रिक सम करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बट अगर दोनों साइड के एरिया अगर पॉजिटिव है और उसको हम सम करते हैं, दोनों साइड के एरिया पॉजिटिव लेके अगर हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पाथ लेंथ, डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड और पाथ लेंथ मिलेगा। वेरी गुड। We had also seen mathematically that the delta x upon delta t gives us the average velocity, but dx upon dt will gives us the instantaneous velocity mathematically. Mathematically, delta v upon delta t, delta v
velocity upon delta t gives us the average acceleration, but dv upon dt, differentiation of the velocity with the time, dv upon dt will gives us the instantaneous. Acceleration. And then after a very important question we had learned, that is the equation of the constant acceleration by the velocity versus time graph. So we got some equations for the constant accelerated motion. So today our task is to discuss some numericals based on this particular topic. So constant accelerations का जो motion है, if the object performs the motion with the constant acceleration, then we have 5 equations. हमारे पास 5 equation है. तो अब कौन सा इक्वेशन कहाँ पे लगाना है, तो उसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ बताया था कि भाई क्या डेटा में आपको क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, उसको सोच के समझ के आपको इक्वेशन अप्लाई करना है. बट एक बार हम फिर से वापस से जो इक्वेशन हमने डिस्कस किए थे वो एक बार फिर से हम एक बार सोच लेते हैं. चलो, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था a motion with the constant acceleration, equation for the motion with the constant. सर 5 इक्वेशन, 4 नहीं थे? 5 थे भैया, 5 थे. तो कौन से वो पांचवा कौन सा था, तो क्या वो भूल गया क्या? SNDN वाले दो. Distance in nth second. Perfect. And n second. Yeah. So the very first equation was that is v equals to v naught plus at. That is the first equation. Then the distance traveled is assumed to be a d. Then it is a VOT plus half AT square. Number 3, V square minus V naught square is equal to 2AD. VD. And we also have one more equation which is not the general equation. It is not considered to be a general equation, but sometime this equation will help us very greatly. And these are the 4 equations, and apart from that, one different new equation, that distance traveled in particularly nth second was given by V naught plus A by 2 plus 1. So these are the basic equations for the constant accelerated motion. तो अब इसके बेस पे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं. तो हर एक इक्वेशन का एक देखो तो आप एक कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो वहां पे कहीं पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा. देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है वहां पे कहीं पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है. देखो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर. यस सर. तो इसका है ना वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है. यहाँ पे क्या नहीं है? Velocity. फाइनल आफ्टर t इंटरवल टाइम जो है ना वो वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है. यहाँ पे क्या नहीं है? Time is not there, and here the acceleration itself is not there. Though the motion is a constant accelerated, but acceleration itself is not present here. And this is a distance displacement or distance for distance for nth second. So that is precisely a different equation. So no need to differentiate it. No need to make it different. So is that understood, friends? So this is known to you, right? Yes, sir. One more thing. Suppose a velocity increases. So this kind of motion are assumed to be a uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्म है कि नहीं ये वो पता नहीं है,
बट वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एंड इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव लेना है। ओके, एंड सपोज वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि दिस मोशन इज कंसिडर्ड टू बी अ डिसेलरेटेड मोशन, रिटार्डेशन। और रिटार्डेड मोशन भी कह सकते हो उसको, रिटार्डेड मोशन भी कह सकते हो, रिटार्डेशन भी कह सकते हो उसको। तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना होगा या नेगेटिव लेना होगा? नेगेटिव। नेगेटिव लेना है। So at the time of substituting the values, you should think about it. Okay, friends? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So for friends, let us assume the two cases. Case one, friends, we are throwing the object in the upward side, or we are just making the object free fall. So these both the motions are under the gravitational acceleration. कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ ऊपर की साइड, और कोई ऑब्जेक्ट को मैं फ्री फॉल करवाता हूँ, तो ये जो दोनों मोशन है ना, वो दैट मोशंस आर अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू तो क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this acceleration neither changes with the time nor changes with the position. मतलब अर्थ के आसपास के रीजन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.8। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि मैं कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ ऊपर की साइड या नीचे की साइड, में उसको फ्री फॉल करवाता हूँ, तो ये दोनों केस में जो एक्सेलरेशन बैठेगा इक्वेशन में वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, बट वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। मतलब ऐसा हुआ कि ये दोनों जो मोशन है, फ्री फॉलिंग ऑफ द बॉडी or the body which is thrown in the upward side, so this both the motion can be treated as a constant accelerated motion. Why? Because these are the motion under the effect of the gravitational acceleration, and the gravitational acceleration is a constant one. So hence the object thrown in the upward direction or the object which is free fall, both can be considered as a constant accelerated motion. तो मतलब अगर आपको अभी कोई भी न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका हुआ है, थ्रो किया हुआ है, या कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया है, तो आप कौन से इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जो फॉर्मूलाज है ना, वो सारे फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये दोनों केस कांस्टेंट एक्सेलरेटेड ही है। बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। तो केस वन, सर हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो फिर वो ऑपोजिट नहीं होगा ग्रेविटेशनल? क्या बोल रहे हो आप? सर अगर आपने बोला ना कि ऊपर फेंकते हैं ऊपर की साइड, हाँ तो वो ऑपोजिट नहीं हुआ ग्रेविटेशन के? हाँ, ग्रेविटेशन से अपोजिट हुआ, उसका वेलोसिटी ग्रेविटेशन से अपोजिट हुआ, उसका मोशन, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड ही मोशन गिनाए, उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ही कंसीडर कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट एक्सेलरेशन वहां पे आपको नेगेटिव लेना होगा, मतलब मोर प्रिसाइजली आई शुड से इट इज अ कांस्टेंट डिसेलरेटेड मोशन। ओके, बट द फॉर्मूला विल बी द सेम। आपको डिसेलरेशन के वजह से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ सर एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे 9.8 ही लेना होता है? एक्सपेरिमेंट के टाइम पे 9.80 लो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों है ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा, मुझे पता नहीं चला। ये पूछने का रीजन क्या है, बोलो। वो स्कूल में बहुत लोग, मैंने 10th स्टैंडर्ड में देखा था, 11th के भैया लोग सब कर रहे थे, उसमें डिस्कस कर रहे थे कि 9.8 ले या फिर कुछ और ले, तो इसलिए एक्चुअली हाँ 10 भी, कभी कभी 10 भी ले सकते हैं। सिंपल टू मेक द
to make the calculation simple, sometimes we can also consider as a 10. 9.8 के बदले 10 लेते हो ना तो calculation simple हो जाएगा. But आपको क्वेश्चन में precisely बोला गया होगा कि take the g as a 10 या take the g equals to 9.8. और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी g का वैल्यू, acceleration का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो you have to consider 9.8. Okay? Yes, sir. चलो मुझे ये बताओ कि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? हम बॉडी को ऐसे थ्रो, जीरो हाँ, Zero. तो उसका Zero. इनिशियल Zero. वेलोसिटी होगा 0. एंड नंबर 2, एक्सेलरेशन शुड बी देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा. इंक्रीज Increase. हियर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज होगा. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ, कि आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना पड़ेगा या नेगेटिव लेना पड़ेगा. Positive. पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या मैं प्लस जी लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन के बदले? बिकॉज Yes. हियर द एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. Here the acceleration will be equals to the gravitational acceleration. So it is considered to be a plus g. Is that clear to you friends? तो अब जो यस सर इक्वेशन है, जो 3 इक्वेशन है उसको रीडिफाइन करते हैं. तो v is equals to v naught plus at मतलब gt. नंबर 2, d equals to vot 0 हो जाएगा, इनिशियल 0 है, एंड हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा. एंड नंबर 3, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, v नॉट तो 0 है, इज इक्वल्स टू 2g. लेट अज्यूम दैट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू h. तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स आपको? जो यस सर डिस्प्लेसमेंट है, यस सर डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको मैं y अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये के बदले में y लिख सकता हूँ. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर Okay. Now case number 2. A body that is object thrown in upward direction. तो चलो अब मैंने बॉडी को किया है, तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पे ग्रेजुअली वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज. डिक्रीज Decrease. Decrease. So here magnitude वेलोसिटी of velocity decreases, and hence the acceleration should be taken plus g or minus g. Minus g. Minus. जी तो जो भी इक्वेशन है वहां पे एक्सेलरेशन आपको माइनस जी लेना पड़ेगा. And apart from that, if you want to throw the body in the upward direction, obviously you have to provide some initial velocity. Then and then you can throw the body. मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजना है तो आप इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो वो बॉडी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे पड़ेगा ना. तो you have to provide some initial velocity. So then and then the body can go up. So initial velocity will not be 0. So once again thinking about the equations, the basic 3 equations, 1, 2, 3. सर बोलो. तो सर इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो आएगा. अगर आपको ऐसा पूछा हुआ है कि एट द मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है, मैक्सिमम हाइट पे, देखो ये फाइनल चीज है ना, वो एक रिलेटिव थिंग है. मैं आपको बताऊं, आपने ऐसा बोला कि सर क्या फाइनल वेलोसिटी 0 आएगा, बट वो फाइनल मोमेंट आप कौन सा कंसिडर करते हो, आप कौन सा मोमेंट फाइनल कंसिडर करते हो, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया नीचे ग्राउंड से, कोई ऑब्जेक्ट को मैंने ये यहाँ से ग्राउंड से थ्रो किया, और कोई बंदा ऐसा है कि जिसने ये चीज को 2 सेकंड के लिए ही ऑब्जर्व किया, ओनली 2 सेकंड. तो 2 सेकंड में तो वो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही पहुंचेगा. तो जो पर्सन ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसके लिए तो फाइनल टाइम यही हो गया 2 सेकंड वाला, उसने 2 सेकंड तक ही ऑब्जर्वेशन किया.
तो उसके लिए वो फाइनल मोमेंट ये हो गया, तो क्या वहां पे वेलोसिटी 0 होगा? नो सर। नो सर। कोई बंदा ऐसा है कि उसने ये जो प्रोसेस है, ये जो इवेंट है, उसको 3 सेकंड के लिए अज्यूम किया, तो वो 3 सेकंड के लिए अज्यूम करेगा, तो उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगा। और कोई बंदा ऐसा है कि वो मैक्सिमम हाइट तक अज्यूम कर रहा है, मैक्सिमम हाइट जो अचीव हो रहा है वहां तक वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उसके लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा था कि सर क्या फाइनल वेलोसिटी 0 ले सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कितने टाइम इंटरवल के लिए आप ये मोशन को अज्यूम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर टू यू प्रेरक? सर यस सर। पर सर Okay. एक और डाउट है बोलो बोलो। सर, अगर मैक्सिमम हाइट पे फेंकता है फिर नीचे तो आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो आप कौन से टाइम पे मुझे पूछ रहे हो, वो मुझे आपको पूछना पड़ेगा। कोई आपको ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो आपको सामने से पूछना पड़ेगा कि भाई आप कौन से टाइम के बाद मुझे पूछ रहे हो, वो टाइम मुझे बता दो तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। तो ओके सर। हाँ, तो वो टाइम 1 सेकंड है या 2 सेकंड, वो फाइनल मोमेंट कौन सा आप सोच रहे हो, पहले मुझे ये बता दो, उसके बाद मैं आपका आंसर दे सकता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अदरवाइज मैं आपको ऐसा ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकंड से आप थ्रो करते हो कोई ऑब्जेक्ट को, तो वो जब वापस आएगा ना अर्थ पे, तो उसका वेलोसिटी वही रहेगा, 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। कंसीडरिंग दैट नो रेजिस्टिव, नो एयर रेजिस्टेंस इन द आइडियलिस्टिक सिचुएशन, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आइडियलिस्टिक सिचुएशन में जितने वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो उतना ही ऑब्जेक्ट वापस आएगा आपके हाथ में। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो अब ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसमें y इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट v नॉट t minus half gt square. Is that clear to you? And the third formula, v square minus v naught square is equals to minus 2gy. मैंने ये हर एक फॉर्मूला में g के बदले माइनस g लिख दिया। तो क्या ये सारा चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके, इसके स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। तो हम अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बट अभी मैंने लास्ट में आपको ऐसा, सर हाँ जस्ट मिनट, अभी मैंने लास्ट में आपको ऐसा सिखाया कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर फ्री फॉलिंग बॉडी है या ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द अपर डायरेक्शन है, तो ये अपर डायरेक्शन वाला एंड फ्री फॉलिंग वाला, ये दोनों जो मोशन है ना, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी होता है, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उसका मतलब कि ये दोनों मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड है, हेंस वी कैन अप्लाई दी ऑल दी फॉर्मूलाज फॉर द मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जितने भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किए, वो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये दोनों टाइप के मोशन में, फ्री फॉलिंग बॉडी में एंड बॉडी थ्रोन इन द अपर डायरेक्शन, ये दोनों में हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो पूछो, क्या पूछते हो? सर ये सेकंड केस है, उसमें वेलोसिटी का ग्राफ है, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम का, वो डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा ना? किसकी बात कर रहे? देखो पहली बात, एक मिनट, कौन बोल रहा है क्वेश्चन? हेट। हेत, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। कांस्टेंट, नहीं, मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन देता है। वेरी गुड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। वेरी गुड, मोर प्रिसाइजली आई शुड से एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एंड जो टेंजेंट थ्रो करते हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि हम कौन से मोशन की बात कर रहे हैं अभी, किस टाइप के मोशन की बात कर रहे हैं? ये जो दोनों मोशन है वो कौन किस टाइप का मोशन हुआ? ग्रेविटेशन फोर्स के साथ। अब वो ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है। हाँ, तो ये दोनों मोशन कैसे है, कैसे ट्रीटमेंट, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ही ट्रीट कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो ये दोनों मोशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो करोगे तो इसका मतलब ऐसा होगा कि अरे सॉरी सर, वो स्लोप
वो स्लोप आएगा। आइदर ascending और descending straight line. Is that clear? यस सर। तो आपने ऐसा बोला कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पैराबोलिक मिलेगा, तो क्या वो मिलेगा? नहीं सर, पोजीशन वर्सेस टाइम का बोला। हाँ, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ 100% पैराबोला मिलेगा, 100%। बट आपने पहले मुझे बोला था वेलोसिटी का बोला था, पोजीशन का नहीं बोला। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है इस टाइप के मोशन में, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ 100% स्ट्रेट लाइन होगा। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, वो कर्व्ड होगा, बिकॉज हमने ऐसा देखा था कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कब स्ट्रेट लाइन हो सकता है? बताओ, याद करो, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कब स्ट्रेट लाइन हो सकता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ही, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो ही पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना भैया, वेलोसिटी आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस है ना, तो यहाँ पे वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। वो पैराबोलिक मिलेगा। आपकी बात सही है अगर पोजीशन के लिए बोलते हो तो। और वो ग्राफ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं, वही तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या मैंने ये लॉजिक समझ में आया आपको? यस सर। देखना है कि किस टाइप का मोशन है और फिर ये सोचना है कि हम पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के बारे में सोच रहे हैं या वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ अजम्पशंस, कुछ कंक्लूजन निकालना है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके फाइन। तो I will provide the screenshot of whatever I had written here. So let's move. अभी कौन लास्ट में, कौन आया, कौन लेट आया? धैर्य। धैर्य इतना लेट क्यों आया? अरे सर वो नेट इशू हो रहा था सर, 2 बार मैंने ज्वाइन किया सर पर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। ओके ओके, सो बी इन टाइम, बिकॉज ये टॉपिक सारे रिलेवेंट होते हैं। एक टॉपिक अगर स्किप कर दिया तो दूसरे में दिक्कत आएगा। सो डोंट मिस द मोमेंट्स। ओके ओके सर। let's just, the file is loading here, so just a moment. Yeah. Okay friends, are you able to see the notes in your mobile? Yes sir. सर यस सर। यस सर। Okay fine. Okay, so friends, look at the fifth question, fifth illustration. तो वहां पे ऐसा बोला गया है कि डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल। तो फ्री फॉलिंग बॉडी है, उसके लिए आपको डिस्कशन करना है और ग्राफ के साथ डिस्कशन करना है। तो वैसे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन में अज्यूम कर लो कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि कंसीडर डाउनवर्ड डायरेक्शन consider the downward direction is a negative, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम करके चलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री फॉल है, तो पहली बात ये कि जो वेलोसिटी इनिशियल होगा वो कैसा होगा? 0।
अब डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, वो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है डायरेक्शन में लगता है सर इसमें लिखा है कि ऐसा कंसीडर टुवर्ड्स द करना अर्थ। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, किसी का माइक चालू है, प्लीज म्यूट द माइक। ओके, मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन। तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम करना है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -c। कंसीडर करेंगे, क्यों? बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो अब जो फॉर्मूला है, तो v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस at, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन शुड बी टेकन -g। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा -gt वाला। तो ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है कि एज इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऑलवेज कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा मिलेगा? इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अब उल्टा सोचना है आपको। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी एट द टाइम 0 ही है। अब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ता है, बट कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे वो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, वो मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूं या नेगेटिव वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूं? नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ पे ये कंसीडर करके चलेंगे हम कि नेगेटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम करके चलना है। तो ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूंगा तो कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा? ये नीचे की तरफ। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज अ नेगेटिव पहले 0 थी और उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ता जाता है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, तो उसको माइनस, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव बोला हुआ है, इसलिए मैं ये ग्राफ नीचे की तरफ बता रहा हूँ। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा चलो, ये मोशन में अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस, यहाँ पे कोई आपको अगर ऐसा पूछता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए, तो मुझे सोच के बताओ कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे मिलेगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो भैया यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना वो -g है, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्या ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यस और नो? नो। नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ भैया कैसा होगा ग्राफ? ये तो चेंज, नेगेटिव y एक्सिस। ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? वो पैरेलल होना चाहिए टाइम एक्सिस के साथ। परफेक्ट आंसर, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल बताना चाहिए, बट वो मुझे पैरेलल तो बताना चाहिए पर नेगेटिव समवेयर, बिकॉज इट्स वैल्यू इज -9.8। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये Yes, sir. नेगेटिव साइड रख के, नेगेटिव साइड पे रख के उसको टाइम एक्सिस के पैरेलल बता देंगे, बिकॉज उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये दूसरा ग्राफ। यस सर। चलो और कुछ इक्वेशन इसके बारे में पता करते हैं। तो आपको पता है कि वो दूसरा वाला इक्वेशन होता ना, वो d इक्वल्स टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या होगा भैया? डिस्प्लेसमेंट y अज्यूम कर लेता हूँ, इनर्शियल वेलोसिटी तो 0 है, फ्री फॉलिंग है, और एक्सेलरेशन मैंने कंसीडर किया है -g, तो इसके बदले -gt स्क्वायर। अब अगर सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे मिलेगा, तो ये y का फॉर्मूला भी है हमारे पास और ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात मेरी ये है कि क्या ये y वर्सेस t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यस और नो? क्या y वर्सेस t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, यस और नो? यस पोजीशन, ये y मतलब डिस्टेंस, पोजीशन है, तो क्या ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, यस और नो? नहीं मिल सकता भैया, बिकॉज देखो मेरी बात सुनो, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हमको कब मिल सकता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं भैया, यहाँ पे तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
एक चीज तो कंफर्म्ड है कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन इट इज पॉसिबल स्ट्रेट लाइन ओनली एंड ओनली व्हेन द मोशन इज अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन हो तो ही वो पॉसिबल है। तो कैसे मिलेगा? तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पता है आपको? यहाँ पे आपको टी का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा, टी का वैल्यू 2 डालना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट एट द डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हर एक मोमेंट पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद मतलब आपको हर एक मोमेंट पे आपको पॉइंट आपको जैसे 1 सेकंड यहाँ पे प्लेस करोगे तो -4.9 समथिंग आएगा, 2 सेकंड प्लेस करोगे तो आपको कुछ और वैल्यू मिलेगा। मतलब आपको ये पॉइंट, मतलब ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, दूसरा कुछ यहाँ पे मिलेगा, तीसरा यहाँ पे मिलेगा। मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना तो यहाँ इस हिसाब के आपको मिलेगा, इस हिसाब से आपको मिलेगा 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। वो ये ग्राफ कैसे मिलेगा? तो ये ग्राफ आपको बाय कैलकुलेशन ही मिल सकता है, फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अप्लाई करते जाओ एंड फाइंड टाइम का और y का पॉइंट फाइंड, आपको टाइम का कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए, दो कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा तो पॉइंट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक, यहाँ पे फिर दूसरा मिलेगा, यहाँ पे तीसरा मिलेगा, ऐसे मिलाते जाओ तो ये पूरा ग्राफ मिल जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? और एक फॉर्मूला रहेगा, ग्राफ तो सारे खत्म हो गए, बट एक और फॉर्मूला था, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सेलरेशन को -g कंसीडर करना पड़ेगा एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ y। यहाँ पे v स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन सिंपल ऐसा था कि आपको फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मोशन एक्सप्लेन करना है, उसके इक्वेशन एंड ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेगेटिव डायरेक्शन लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करके ये आपको डेरिवेशन ये आपको समझाना है। तो इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये सारे ग्राफ आपको समझ में आया? यस सर। इज इट ओके यस फ्रेंड्स? सर। यस Yes. Yes. तो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The acceleration produced in the object due to the gravitational force is called the gravitational acceleration. This acceleration is in the downward direction. If the air resistance is neglected, the falling of the object under the gravitational force is said to be a free fall. देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ फर्स्ट टर्म के एग्जाम के अंदर कुछ स्कूल के अंदर मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्री फॉल। व्हाट इज द फ्री फॉल? फ्री फॉल का मीनिंग क्या हुआ? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी के अंदर थ्रो मतलब फ्री फॉल करवा, मतलब विदाउट जीरो वेलोसिटी फ्री करते हैं, कोई वेलोसिटी को जीरो वेलोसिटी के साथ फ्री करते हैं, तो अंडर द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स, ये आपको लिखना है, अंडर द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स neglecting all the air resistance, the motion under the gravity is considered to be a free fall. क्या ये समझ में आया आपको उसका डेफिनेशन? यस सर। लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन कंसीडर इज अ नेगेटिव बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन करके हमने ये 3-4 फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव किए और ये तीन ग्राफ यहाँ पे हम देख सकते हो। तो ये जो भी मैंने आपको ड्राफ्ट ड्रॉ किया था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, पॉजिटिव यहाँ पे ग्राफ के पॉजिटिव साइड दिखाया ही नहीं है, सारे ग्राफ्स नेगेटिव साइड ही दिखाया है, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया है तो सारा चीज नेगेटिव में ही होता है। उसका वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और बॉडी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो मतलब सब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो सारे ग्राफ डाउन नेगेटिव ही बताना पड़ेगा आपको। सर। हाँ बोलो सर, ये एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? वो तो बहुत ही कम वेट वाला होता है। देखो क्या होता है कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करते हो तो आपका जो मोशन रिजल्टेंट मोशन जो रहेगा ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड नहीं रहेगा, बिकॉज एयर रेजिस्टिव जो फोर्स होता है ना वो हमारे वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, आप कभी साइकिल लेकर निकले हो बाहर? यस सर। स्कूटर साइकिल लेकर निकले हो बाहर? यस सर। तो आपने देखा होगा कि जब आपका स्पीड बढ़ता है तो आपको जो एयर का थ्रस्ट फील होता है, एयर का जो धक्का लगता है आपको, यस सर।
वो क्या यस सर, वो कैसा होता है? वो मतलब ऐसे हम आगे जाते हैं और एयर थोड़ा ऐसे पीछे शिफ्ट होता जाता है। नहीं, मैं ऐसा बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम हमारा वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो हमारे हाँ, ऊपर जो एयर का रेजिस्टेंस होता है, फोर्स, एयर का रेजिस्टिव फोर्स, वो हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। यस सर। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो फोर्स है, एयर रेजिस्टिव फोर्स, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वो चेंज हाँ वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि ऑन दैट सर्कमस्टेंसेस our net acceleration is also going to be changed। यस सर। तो इसके वजह से तो फिर क्या होगा कि उसके पूरे फॉर्मुलेशंस पूरे चेंज हो जाएंगे, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा ही नहीं अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ग्रेविटी वाले, चैप्टर के अंदर ग्रेविटी वाले जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उस सब में हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो हमने ऑलरेडी नेग्लेक्ट किया है। नेगलेक्ट किया। नेग्लेक्ट कर दिया है, ऐसा सोच के, ऐसा मान के चलेंगे। इज इट ओके? यस सर। यस ओके, सर। यस सर। यस सर। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। चलो फ्रेंड्स, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? 3.7 नंबर क्वेश्चन। ओके फाइन। तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि व्हेन द, अच्छा, स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात है यहाँ पे। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल, तो नाम एज नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है बिफोर द स्टॉपिंग। आपका, चलो आप स्कूटर पे जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो क्या स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट क्या आप स्टॉप हो जाते हो कि कुछ डिस्टेंस नहीं ट्रैवल? सर। कुछ पूरा डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद स्टॉप होते। तो वो जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं स्पॉटिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, उसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो उसके बाद ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली आप स्टॉप नहीं होते हो, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आप स्टॉप होते हो। सो वो जो डिस्टेंस है उसको ही स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। अब मैं ऐसा प्रूव करूंगा कि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो टू, इट इज डिपेंड ऑन द टू पैरामीटर्स। I will prove that stopping distance is depend on the two parameter। वो मुझे यहाँ पे प्रूव भी करना है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। एक तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मैं जा रहा हूँ, एक उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरा जो डिसलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो ब्रेक के द्वारा डिसलरेशन प्रोड्यूस होगा, ब्रेक के द्वारा जो डिसलरेशन प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। डिसलरेशन प्रोड्यूस्ड, सर बोलो। इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों आएगा? हाँ, तो सोचो क्यों आएगा? सामने सर फोर्स ऑब्जेक्ट आएगा पीछे नहीं इसलिए। जाएगा ना, सिर्फ ब्रेक अप्लाइड होगी तो रुक जाएगा। तो वेलोसिटी कम होगी। भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट को पीछे जाने की जरूरत नहीं है भैया। एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होता है? जब वेलोसिटी कम हो जाती है। डिक्रीज हो रही है। ऑब्जेक्ट जब पीछे जाता है ना तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन में है तो उसका मतलब ऐसा उसके वेलोसिटी नेगेटिव है। बट एक्सेलरेशन नेगेटिव करने के लिए हरगिज जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना। एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है? सिंपल, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, दैट्स इट।
इज इट ओके? तो सर अगर Yes, sir. एक्सेलरेशन में पीछे जाए तो फिर वो पॉजिटिव ही गिनाएगा ना? देखो उसमें क्या करना होता है आपको कि आपको क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को आपको, अभी मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हो, तो पहले तो ग्रेजुअली क्या होगा, जब वो ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर जब मोशन में है, ऊपर जा रहा है, तो एट दैट सिचुएशन क्या होता रहेगा? वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फिर एक क्या बात, एक मिनट स्पीड एक से। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कोई ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो ऊपर की साइड, तो क्या उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है? कम हो जाएगा नीचे वेलोसिटी, से कम थ्रो हो जाएगा। करेंगे तो ना सर, तो कम होगा। हाँ, तो नीचे ऊपर की साइड का कहाँ से थ्रो करेंगे? ऊपर की साइड तो नीचे से ही थ्रो करेंगे। फ्री फॉल जैसा सर, फ्री नहीं, फॉल फ्री जैसा। फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर। मतलब उसमें वेलोसिटी देंगे ऐसा फ्री फॉल में। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ आप थ्रो करते हो तो क्या होगा पहले? ऊपर कम होगी धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी एक स्टेज पर। हाँ, एक स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो होगा, और उसके बाद क्या होगा? फिर बढ़ेगी। फिर बढ़ेगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है। पहले जब ऊपर जा रहा था उसको पार्ट 1 बोलेंगे, और जब नीचे आ रहा है तो उसको पार्ट 2 बोलेंगे। तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना है फिर। तो पहले पार्ट में क्या होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है आपको, बिकॉज वहां पे डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। और दूसरे पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। तो आपका क्वेश्चन ऐसा था कि सर अगर मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है मोशन के दौरान तो क्या करना होता है? तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कुछ अलग कैलकुलेशन होगा और अपोजिट डायरेक्शन के लिए कुछ अलग कैलकुलेशन होगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आज मैं लेने भी वाला हूँ। ओके, तो अभी यस सर। ये वो स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात है। तो मैं अभी प्रूव करूंगा कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो उसके इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरा जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, व्हीकल के द्वारा जो ब्रेक लगाई जाती है उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसके द्वारा कितना डिसलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये दो चीज के ऊपर मैं प्रूव कर दूंगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंडेंट है। चलो, और एंड आई आल्सो वांट्स टू डिराइव द फॉर्मूला। I also wants to derive the formula of the stopping distance. चलो, सपोज के हम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं और उसका मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है। लेट अस अज्यूम दैट द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज अ ds, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसको मैं ds बोलूंगा। एंड मुझे ये बताओ, तो ये ds जितना डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? बोलो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसका? ये स्टॉप 0. हो जाएगा। नाम नाम ही ऐसा है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब स्टॉप होने के दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, मतलब फाइनली तो वो स्टॉप ही हो जाएगा। यस सर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो एक्सेलरेशन है फॉर्मूला में, क्या मुझे वो पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव, बिकॉज वेलोसिटी हम डिक्रीज कर ब्रेक लगा रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज, इट इज अ डिसलरेटेड मोशन। सो इट इज अ डिसलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन शुड बी टेकन नेगेटिव। अब देखो, ये पूरा जो क्वेश्चन है, derive the expression of the stopping distance in the form of v naught and a। कहीं पे पूरे क्वेश्चन में कौन से क्वांटिटी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। कौन सा क्वांटिटी पूरे क्वेश्चन में नहीं है? which quantity is not given in the question? टाइम। time is not there in the whole question। तो टाइम ना हो ऐसा तो एक ही फॉर्मूला है, बताओ कौन सा फॉर्मूला है? v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। हाँ तो सर। फ्रेंड्स, अभी आपको पता चला कैसे सोचना है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड वाले आपके पास 4-5 फॉर्मूला है। तो अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा वो कैसे सोचोगे आप? तो वो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे सोचोगे कि क्या दिया है, क्या लाना है, क्या फाइंड करना है, क्या नहीं दिया है, तो वो सोचने के द्वारा आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है और वो फाइंड भी नहीं करना है भी नहीं, उसको फाइंड भी नहीं करना है, तो ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें टाइम नहीं हो।
टाइम ना हो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? v square minus v naught square equals to 2ad. Is that clear to you friends? यस सर। यस सर। यस तो अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल सपोज कि हमारा v0 है, एंड जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन है, तो दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज अ माइनस है, एंड डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस को सिंबल दिया हुआ ds, तो ये हो जाएगा माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ds। अब ये नेगेटिव नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव नेगेटिव को हटा दो, कैंसिल कर दो, तो ds को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो, तो क्या मिलेगा आपको? तो क्या ये चीज प्रूव हो गया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? एक तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरा डिसेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या ये प्रूव हो गया? यस सर। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो आपके व्हीकल का इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा आपके व्हीकल का ब्रेकिंग कैपेसिटी, मतलब वो कितना डिसेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर द गिवन व्हीकल, फॉर द गिवन डिसेलरेशन, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हमारे इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो फ्रेंड्स अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। ये चीज तो कंफर्म्ड है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है और डिसेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना वो आपका वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपका वेलोसिटी डबल है तो आप मुझे बताओगे, कोई मुझे बताएगा अगर वेलोसिटी हमारा डबल है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगा? 2 टाइम्स। यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि d प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर 4 ये टाइम्स। हाँ, अगर 4 ये टाइम इट इज इन द सेम प्रोपोर्शन, तो मैं ऐसा कह सकता था कि अगर वेलोसिटी डबल होती है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी डबल होता है। बट यहाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस भैया ये वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर वेलोसिटी डबल होता है तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगा, मतलब आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, डबल नहीं होगा। अगर ओके। वेलोसिटी 3 टाइम्स करते हो, थ्राइस करते हो, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना टाइम बढ़ेगा? 6 टाइम्स। अरे भैया 9 टाइम 9 9 टाइम अरे 8 times. 8 नहीं 9 आएगा ना भैया, 3 का स्क्वायर। Yes, sir. अरे 3 का स्क्वायर करना है आपको, 9 टाइम आएगा। अगर मैं वेलोसिटी 4 टाइम इंक्रीज करता हूँ, 4 टाइम, तो मेरा स्टॉपिंग 16 वो 16 टाइम हो जाएगा। मतलब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। My vehicle is moving with the velocity 20 meter per second, and suddenly I need to apply the brake. I found that to apply the brake, and then I found after applying the brake, my stopping distance is 3 meter. मेरा अभी जो stopping distance है वो 3 meter है। Now suppose I am moving. Now suppose I am moving with the velocity 40 meter per second in place of 20. Suppose I am moving with the velocity 40 meter per second, then what should be my stopping distance? 9. 9. अरे भैया 6 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, क्या आएगा? सर देखो, एक बार 12। अच्छा, जब मेरा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था तब मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस 3 मीटर था। अब मेरा जो वेलोसिटी है ना वो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो अब मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। सर इसमें तो वो कंपेयर ही करते हैं नहीं है। अरे भैया मेरी बात सुन लो। पहली बात, आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। वो आप जो करते हो ना कंपैरिजन वाला, वो सेम प्रोपोर्शन में होता है ना। कोई क्वांटिटी y x के बीच में अगर सेम प्रोपोर्शन का रिलेशन है ना तो ही आप आएगा सर। तो ही कंपैरिजन कर सकते हो, सेम प्रोपोर्शन में ही। यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर है, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, आपको स्क्वायर लगा के सोचना है।
तो बोलो अब मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? 12. 36. 12 आएगा। 12 आएगा 12 आएगा। क्यों 12 आएगा? मेरा स्पीड 4 कितना टाइम्स इंक्रीज होता है। हाँ, मेरा स्पीड कितना टाइम इंक्रीज हुआ? मेरा स्पीड 20 से 40 को मतलब कितना किया मैंने? स्पीड को डबल कर दिया। स्पीड को डबल किया, यस और नो? यस सर। यस सर। अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर स्पीड डबल होता है तो स्टॉप कितना टाइम इंक्रीज होगा? 4 टाइम। 4 टाइम। तो 3 का 4 टाइम क्या होता है? 12 होता है। तो ये मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया। इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको लॉजिकल मेथड समझ में आ गया तो मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैथमेटिकल, न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू न्यू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2a, old stopping distance is equals to old velocity square upon 2a according to formula. Now take the ratio, new stopping distance upon old stopping distance is equals to v naught dash square by 2a upon v naught square by 2a. अब ये जो by 2a get cancelled from the numerator and denominator, तो बाकी बचेगा v naught square upon v naught square, v naught dash square upon v naught square. अब नया वेलोसिटी क्या? हाँ, नया वेलोसिटी कौन सा है? 41। पुराना वाला कौन सा है? 20 करना पड़ेगा। तो ये 40 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 रहेगा। तो न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द ओल्डर वन, बट द ओल्डर वन इज अ 3, तो 3 into 4 12। तो ये कैलकुलेशन से मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। जो अगर कोई डाउट आता है तो मैंने कैलकुलेशन भी करके किया हुआ है, बट मेरे हिसाब से JEE नीट जब आप देते हो तो कैलकुलेशन करके आंसर लाओ। तो इसके बदले अगर आपके लॉजिकली आप ला सकते हो तो दैट इज मोर बेटर। इज इट क्लियर? आपका टाइम बचेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. सिंपल सी चीज है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम। अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ेगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम बढ़ेगा। शीट, so that is a simple logic. Is that clear to you? Yes. क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसको कैलकुलेशन किया एंड लॉजिकली भी आपको समझाया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है कि टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। सो इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज डबल्ड then the stopping distance will increase to 4 times. तो अभी आपको समझ में आया? कभी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं पे ऐसा लिखा होता है सेंटेंस के देर आए दुरुस्त आए, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है गुजराती में ऐसा भी लिखा होता है कि झड़पनी मजा मौतनी सजा। सुना है कभी ऐसा? यस सर, हाईवे पे लिखा होता है। हाँ, तो वो क्यों लिखा होता है पता चला आपको? आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेरा स्पीड डबल करता हूं तो मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस भी डबल होगा। ऐसा नहीं होता भैया। अगर आपका स्पीड डबल होता है तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहला मैं अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें पहले मेरा वेलोसिटी 20 था, तो एट दैट टाइम द स्टॉपिंग डिस्टेंस वाज ओनली 3 मीटर। अब मैंने वेलोसिटी डबल कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल नहीं हुआ, वो 4 टाइम बढ़ गया, तो वो कितना हो गया? 12 मीटर हो गया। अब 12 मीटर डिस्टेंस काटने के बाद मैं स्टॉप होने वाला हूं, बट उसके पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। तो अब आपको पता चला ये सब क्यों लिखा होता है, झड़प नहीं मजा मौत नहीं सजा। अंडरस्टूड दिस? यस। Yes, sir. Yeah, so this is the concept of the stopping distance. Is it understood? Yes. Yeah. मतलब सर साइकोलॉजिकली भी एक्सप्लेन कर दिया। साइकोलॉजिकली? अब क्या बोल रहे हो आप? दोस्तों क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर आपने मतलब बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया वो सब। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, so next question is reaction time. तो रिएक्शन टाइम पहले क्या है, मैं इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल देता हूँ चीज।
कि रिएक्शन टाइम एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग इट इज अ टाइम ऑफ रिएक्शन। जब कोई इवेंट होने वाला है या होता है तो आप उसको रिएक्ट करोगे तो उसके लिए कुछ टाइम पास होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे आप देख रहे हो कि आप सुबह मॉर्निंग में दूध गर्म कर रहे हो, मतलब आप गर्म करते हो, आप दूध गर्म कर रहे हो, तो क्या होता है कि वो गर्म होने के बाद क्या होगा, उसके वो आप मतलब वो बाहर आने का ट्राई करेगा, तो आप फटाफट जाके क्या करोगे? गैस बंद कर दो। आप गैस के सामने ही खड़े हो, गैस के सामने ही खड़े हो, और जैसे ही आपको दिखेगा कि ये मिल्क वो वेसल में से बाहर निकलने वाला है, तो आप ऑन द स्पॉट, वो आपके माइंड में थोड़ा प्रोसेस होगा और ऑन द स्पॉट आप गैस बंद करोगे, बट तब तक तो कुछ ना कुछ मिल्क वहां पे लीक हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। मतलब आपने वो देखा कि गिर रहा है, और उसके बाद आपके माइंड में प्रोसेस हुआ, और वो आपका जो माइंड है वो सिग्नल देगा आपके हैंड को, और हैंड आपके जो हैंड है वो प्रोसेस करेंगे बंद करने का गैस को, बट उसके उसमें थोड़ा टाइम, थोड़ा माइनर टाइम पास हो जाएगा। तो वो जो टाइमिंग है इवेंट को देखने के बाद रिएक्शन करने में कुछ टाइम लगता है, तो वो रिएक्शन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ये टाइम ऑफ रिएक्शन क्या है वो आपको समझ में आ गया? इन सिंपल इवेंट को देखने के बाद आप जो रिएक्ट करते हो, तो रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो माइंड में प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेस करने के बाद आपका माइंड सिग्नल देगा आपको हैंड को, तो वो जो टाइम इंटरवल है उसको टाइम ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मुझे ये टाइम ऑफ रिएक्शन मेजर करना है फिजिक्स के कंसेप्ट का यूज करके। मुझे मेरे माइंड का, हर एक बंदे का अलग अलग होता है टाइम ऑफ रिएक्शन, किसी का माइंड फास्ट प्रोसेस करता है, किसी का माइंड स्लो प्रोसेस करता है। मुझे मेरा माइंड का टाइम ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, मेरा माइंड कितना टाइम में रिएक्ट करता है वो मुझे फाइंड करना है। तो फ्रेंड, मैं फिजिक्स के कंसेप्ट के द्वारा वो फाइंड करने का ट्राई करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है हमारे पास। तो हम देखो, अब हमारा टॉपिक टारगेट क्या है हमारा? टाइम ऑफ रिएक्शन। मेरे माइंड का टाइम ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो क्या आपके मोबाइल में आपको एक फिगर दिख रहा है? यस सर। ओके, क्या दिख रहा है आपको, मुझे बताओ। रूलर, Ruler, ruler and and your hand. hand. और फ्रेंड, दो फ्रेंड ने पकड़ा हुआ। हाँ, एक आपने मान लो कि आपके पास एक का ये स्केल है, बहुत बड़ा एक स्केल है जिसमें कैलिब्रेशन भी किया हुआ है, मतलब 1 2 3 लिखा हुआ है। आपके पास एक स्केल है, तो आप एक काम करो, आपके फ्रेंड के हाथ में वो स्केल दे दो, और आप नीचे से आपका जो हाथ है ना उसके बीच में से स्केल को पास करना है, बट उसको टच नहीं करना है आपको उसको टच नहीं, आपके फ्रेंड ने वो स्केल पकड़ा हुआ है और आप वो स्केल को टच नहीं करना है। तो अब क्या करेगा आपका फ्रेंड, वो स्केल है ना उसको फ्री फॉल करते टाइम बोलेगा कि भाई मैं फ्री फॉल कर रहा हूँ, गेट सेट गो, ऐसा बोलेगा। बट जैसे ही वो गेट सेट गो करेगा, तो उसके बाद आप वो स्केल को पकड़ने की ट्राई करोगे। बट आप देखोगे, ये एक्सपेरिमेंट घर पे जाके पापा मम्मी के साथ कर लेना, या आपके सिबलिंग, मतलब आपके अगर कोई ब्रदर सिस्टर है तो उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो आप देखोगे कि गेट सेट गो करने के बाद ऑन द स्पॉट जहां पे आपका हाथ है वो उसी पॉइंट में आप पकड़ ही पाओगे, थोड़ा तो स्केल नीचे गिरेगा, थोड़ा तो स्केल नीचे गिर ही जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? हाँ सोचने का टाइम लगा वो सर इसमें। हाँ, थोड़ा तो टाइम लगा, तो इसको माइनर टाइम। हाँ, ये माइनर टाइम तो लगेगा, तो वो टाइम को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फिजिक्स के कंसेप्ट के द्वारा। वो टाइम को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैं बताऊँ आपको कैसे। सपोज के यहाँ पे स्केल में 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे सपोज के 20 है, आपके हाथ में जो कैलिब्रेशन है, आपके हाथ में जो लिखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब सपोज के आपके फ्रेंड ने बोला गेट सेट गो, जैसे ही वो गो करेगा तो आप वो स्केल को पकड़ने की ट्राई करोगे, तो जैसे ही आप स्केल को पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो हाथ है वो 20 पे नहीं है, अब वो आपका जो हाथ है वो आपको सपोज के दिख रहा है कि 15 पे है। मतलब क्या हुआ? 5 सेकेंड। टाइम हुआ सर। मतलब ऐसा हुआ कि 5 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया स्केल ने। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो Yes, sir. ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा
हर एक बंदे के लिए वो 5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, अलग अलग पर्सन के लिए टोटली ये जो रिएक्शन टाइम ऑफ रिएक्शन है वो पर्सनल थिंग है, इट इज अ टोटली पर्सनल। तो अलग अलग पर्सन के लिए वो अलग अलग आएगा। सपोज कि हमारे एग्जांपल में वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो खत्म, बात खत्म। डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया स्केल का 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मीटर। अब इक्वेशन अप्लाई कर दो, d = VOT + ½ AT²। इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, एक्सेलरेशन ले लो आप 9.8 ले लो बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और t तो आपको फाइंड करना है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया 5 × 10⁻², मतलब 0.05। तो खत्म, बात खत्म। तो t² = क्या आ जाएगा 0.5 × 2 / 9.8। अब इसका जो भी आंसर होता है उसको स्क्वायर रूट निकाल दो, उसका रूट निकाल दो तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कितने टाइम की देर लगती है? रिएक्शन टाइम। ये आपका रिएक्शन टाइम हो गया। तो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड रिएक्शन टाइम प्रैक्टिकली। यस सर। यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट, 0.110. हाँ वो तो अलग अलग 0. पर्सन, वो आप घर पे आपका खुद का फाइंड कर लेना, घर पे जाके खुद का फाइंड कर लेना, अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द टाइम ऑफ रिएक्शन। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बनाया हुआ है, मतलब पहले टाइम ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं वो पूरा चीज, मतलब ये पूरा चीज समझाया है, उसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया हुआ है, और उसके बाद बताया कि भाई यहाँ पे जो बंदा है उसका 21 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 21 सेंटीमीटर, तो उसका रिएक्शन टाइम हो गया 0.2 सेकेंड। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, तो ये sir. क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बट आंसर तो एक ही स्टेप का है, जस्ट एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मतलब ये चीज क्या है वो आपको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो अब मैं जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 100% एग्जाम में पूछ सके ऐसा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो अब कुछ आपको देखो, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊं और आप सीख लो, ऐसा नहीं है। उसमें आपको कंटिन्यूअसली मेरे साथ सोचना पड़ेगा, मेरे क्वेश्चंस के आंसर मेरे क्वेश्चंस के आंसर आपको देते रहना है और कंटिन्यूअसली सोचना है। तो ऐसे करते जाओगे तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। बट जिन लोगों ने साथ में काम नहीं किया, जिन लोगों ने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका फॉलो नहीं किया, तो आपने सुना होगा कि फिजिक्स बहुत टफ पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फिजिक्स इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सब्जेक्ट as well as it is the most difficult subject. It is totally up to you how you tackle the subject. आप उसको कैसे टैकल करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको नंबर 1 हर एक लेक्चर को अटेंड करना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। नंबर 2 आपको साथ साथ में कंसेप्ट प्रिपेयर करना है, साथ साथ में होमवर्क करना है। नंबर 3 आपको हर एक एग्जाम देना है। ये दिस थ्री आर द बेसिक रूल, ये 3 चीज आपको करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप पढ़ते हो, जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करते हो, तो आपको कंटिन्यूअसली सोचते रहना है कि यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ये क्या पूछने की ट्राई कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल के अंदर, वो आपको कंटिन्यूअसली सोचना पड़ेगा। थोड़े इनिशियली आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट एक बार ये प्रोसेस फिट हो गया माइंड में, ये सिस्टम फिट हो गया, तो इसके जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। बट एक बार आपने खुद सोचना स्टार्ट कर दिया तो, अदरवाइज अगर आप मतलब आलस करोगे, आप मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच से काम नहीं करोगे, तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एज वेल। तो इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू टैकल दिस सब्जेक्ट। तो देखो मैं आपको यहाँ पे लॉजिकली सोचने का इंस्टीट्यूशन आपको दूंगा, आप लॉजिकल सोचो, ऐसा मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दूंगा। मेरा मेथड भी, पढ़ाने का मेथड भी 100% लॉजिकल है। कोई जगह पे कहीं भी कोई भी जगह पे क्रैमिंग नहीं आएगा, बट आप उसको साथ साथ में करो तो बहुत मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि अ बॉल इज, देखो आप क्वेश्चन ध्यान से देखना,
a ball is thrown vertically upwards with the velocity 20 meter per second from the top of the multi-story building. तो मतलब क्या है, पहली बात कि कहाँ से थ्रो कर रहे हैं हम, जमीन से तो नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड से तो नहीं कर रहे हैं, कहाँ से थ्रो कर रहे हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टेरेस में से थ्रो कर रहे हैं। तो देखो ये सपोज के ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये यहाँ पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये रहा बिल्डिंग, ओके। और उसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, वो सुसाइड नहीं कर रहा है बट वो स्टोन को थ्रो कर रहा है। अच्छा, तो ये यहाँ पे रहा बंदा, हमारा बंदा यहाँ पे। तो अब वो स्टोन ऊपर थ्रो कर रहा है, वैसे अभी सुसाइड का फैशन चल रहा है। अच्छा, तो ये बंदा जो है ना वो 20 मीटर पर सेकंड जितने वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहा है ऑब्जेक्ट को ऊपर, और ये बिल्डिंग का हाइट भी हमको दिया हुआ है। ये बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। 25 मीटर दिया हुआ है, ओके। तो क्वेश्चन अब क्या है, अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ है? एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब बॉल मैक्सिमम कौन से हाइट पे जा रहा है। एंड नंबर 2, what is the time, how long will it be before the ball hits the ground, मतलब बॉल ग्राउंड पे आ जाए, मतलब जमीन पे, तो कितना टाइम लगेगा। दो क्वेश्चन है, एक तो कौन से हाइट तक पहुंचेगा और दूसरा वो जमीन पे आता है तो उसमें कितना टाइम लगाएगा। तो पहली बात ये है कि यहाँ पे मैंने उसको 20 मीटर पर सेकंड के थ्रो किया है, तो ग्रेजुअली यहाँ पे ऊपर जाएगा वो, और कहीं पे वो जाके क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा यहाँ पे, स्टॉप हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद क्या होगा, वापस नीचे आए। एक्सेलरेशन बढ़ेगी, नीचे आएगा। अरे एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। आप जो वर्ड है ना उसको प्रिसाइजली सिलेक्ट करो, फिजिक्स के अंदर जो आप बोलते हो उसको प्रिसाइजली सिलेक्ट करो, प्रिसाइज, आपका अप्रोच प्रिसाइज होना चाहिए। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से मैंने थ्रो किया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई और ये ग्राउंड पे पड़ा। चलो पहली बात ये है कि मैं है ना एक काम करता हूँ, ये हाइट फाइंड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पे पहुँचने की, और अगर उसमें मैं 25 ऐड कर दूं तो 25 प्लस h दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे मतलब टोटल हाइट, उसका टोटल हाइट मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का। हाँ, यस तो मैं ना एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा? एक अपवर्ड मोशन में और एक डाउनवर्ड। और दूसरा जो है वो डाउनवर्ड मोशन में। इज दैट क्लियर? यस, यस सर। पहले अपवर्ड मोशन की बात करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 25 इनिशियल वेलोसिटी 20 है भैया, 25 कहाँ से हो गया? 20 25 तो डिस्टेंस है सर। उसका वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट है, ओके। यस सर। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0 0। मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन मुझे प्लस जी लेना चाहिए या माइनस जी लेना चाहिए? माइनस माइनस लेना चाहिए। क्यों माइनस लेना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, एंड फॉर्चुनेटली हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड लेना है, ओके। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फाइन। चलो अब मुझे ये h मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सोच के बताओ कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास 3-4 फॉर्मूला है। v square minus u square is equal to 2as। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप ये फॉर्मूला बोल दो, मजा आ गया। चलो, मतलब यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है हमको और डिस्टेंस फाइंड करना है, तो विदाउट द टाइम एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, v square minus u square equals to ad। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी। जीडी नहीं आएगा। हाँ, 20 वो प्लेस करते हैं ना, वो प्लेस करते हैं, अभी प्लेस करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब एक्सेलरेशन के बदले में क्या लिखूं? 400 -10। ओके, और डी के बदले h लिख दूं, चलेगा अभी? यस सर। यस सर। ओके नाउ? हाँ, यस Yes, सर। sir. यस सर।
तो माइनस 400 400 इज इक्वल टू माइनस 20 h, h is equal to 20 meter. 20 मीटर। चलो, तो मतलब ये फर्स्ट पार्ट इज क्लियर कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच द बॉल राइज। तो कितने हाइट तक वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच रहा है, बोलो, बताओ मुझे कितना आएगा आंसर। 40 45 meter. 45 ये 45 क्यों आया, समझ में आ गया आपको? यस Yes सर। sir. यस सर मुझे नहीं आया सर। हाँ हाँ, वो ऑलरेडी 20 प्लस 25 25 पे तो ऑलरेडी था पहले से, और प्लस 20 हो गया। वापस से 20 मीटर वापस से ऊपर गया। तो टोटल हाउ फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ मच द टोटल हाइट? यस पता चल गया। 45। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। चलो, अब मुझे क्या करना है पता है आपको? मुझे टोटल टाइम फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ऊपर जाने का टाइम फाइंड कर दूंगा और उसके बाद नीचे आने का टाइम फाइंड कर दूंगा, दोनों का एडिशन कर दूंगा। ऊपर जाने का जो टाइम है ना, उसको मैं t1 अज्यूम कर लेता हूँ, और नीचे आने का जो टाइम है उसको t2 अज्यूम कर लेता हूँ। तो पहले मैं ऊपर जाने का टाइम मुझे फाइंड करना है, और फिर मैं नीचे आने का टाइम अलग से फाइंड कर दूंगा, और दोनों को मिला दूंगा। तो क्या मुझे टोटल टाइम ग्राउंड में वापस आने के लिए? Yes sir. Yes. ओके, यस फाइन। सर। तो सबसे पहले अपवर्ड मोशन, अभी अपवर्ड मोशन ही चल रहा है, मुझे टाइम फाइंड करना है। चलो बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं मैं? V is equal to v V0 equal to plus v naught plus 80. मैं आपको बताऊं, आप तीन, अभी आपके पास तीन टाइम वाले तीन फॉर्मूला है। यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द फॉर्मूला। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, यू गेट द सेम आंसर। आप चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, या आप चाहे ये फॉर्मूला, V is equal to V plus V0 by 2 into या आप चाहे ये फॉर्मूला करो, d इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। plus half 80 square. ये तीनों फॉर्मूला में आपको सेम ही आंसर आएगा, बट यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। चलो, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कौन सा? 0 20 20। एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है? 10 minus 10. 10. और टाइम कितना लगेगा फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes sir. यस सर। चलो, क्या ये दूसरे फॉर्मूला में से भी सेम आंसर आ रहा है? चलो, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है मुझे बताओ। 20 meter. 20 मीटर। फाइनल वेलोसिटी 0। 0 plus 20 by 2 into t. तो क्या मिलेगा सोचो? 10 और हाँ 2 सेकेंड नहीं मिलेगा। 2 सेकंड ही मिलेगा। अब तीसरा फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना है? 20। 20 अब यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल 20 है, not t. यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, d इज इक्वल्स टू वी ओ टी प्लस V not t plus half टी 80 स्क्वायर। चलो, डिस्टेंस कितना है? 20। 20 टाइम 20 इंटू टी, ओके। 20 into t. और माइनस हाफ minus 10 half 10 into t square। into t square. तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 20 is equal to 2 ही आएगा सर। माइनस 5 टी स्क्वायर हो जाएगा। 5 t square. Yes. Yes sir. तो इसको मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट फैक्टराइजेशन करना पड़े। हाँ, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, सही बात है आपका। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दो आप, तो टी स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर दो। कॉमन लेके हो जाएगा। हाँ, 5 कॉमन ले लो तो हो जाएगा ये। तो ये तो क्या हो गया, टी माइनस स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट जो बेटर है आपके लिए अप्लाई कर दो, या फर्स्ट अप्लाई कर दो। इज दैट क्लियर? यस सर। जस्ट Yes sir. बट अभी हमको क्या मिला? अभी तो T1 मिला, तो जस्ट नीचे से ऊपर यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम है ना, वो मिला अभी। परिचय जा अब ऊपर से नीचे आने का टाइम तो बाकी है। अब बोलो, कौन सर बोल रहा है, बोलो, पूछना। सर एक बार फिर से समझाओ। कौन सा समझाऊं? इक्वेशन ये v d is equals to v naught plus half 80 square। हाँ, तो देख लो, देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है? ये पार्ट की 20 बात कर रहे हैं, ये बात इसकी बात है। कितना हो रहा है? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 है। एक्सेलरेशन कितना लेना है आपको? 10 माइनस 10 लेना है। माइनस। हाँ, तो बस अब सिंप्लीफाई कर दो ये इक्वेशन को। आप तो कर सकते हो ना ये सिंप्लीफाई। हाँ सर, पता चल गया।
वो करोगे तो आ जाएगा ये आंसर। हाँ सर। ओके ओके, हाँ मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। बट अभी तो आधा ही खत्म हुआ है, अभी केस 2 तो बाकी है, अभी केस नंबर 2 तो बाकी है। अब केस 2 ऊपर तो T2 है, अब उसको नीचे भी लाना पड़ेगा ना। हाँ T2 फाइंड करना पड़ेगा। अब फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अब फॉलिंग का केस तो बाकी है। चलो मतलब डाउनवर्ड मोशन, ये डाउनवर्ड मोशन तो बाकी है। फ्रेंड्स चलो पहली बात ये कि इनिशियल वेलोसिटी कब है, कितना है अब जी हाँ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा। 0 आया। और दूसरी बात एक्सेलरेशन कितना आएगा, प्लस -10 प्लस माइनस 10 नहीं आएगा भैया, अभी प्लस प्लस आएगा। 10। कौन छे परवा परवाह सॉरी सर सॉरी। बोलो कहीं क्या है जीवन में। ओके तो एक्सेलरेशन आएगा 10। अब मुझे ये बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करवाने वाला है हम अब। 45 45 और मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। चलो अब सोच के बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं मैं। हाफ GT² हाफ GT²। या यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं करता है हमको, तो फाइनल वेलोसिटी ना हो ऐसा एक ही फॉर्मूला है, d = VOT प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस 45, इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 एक्सेलरेशन प्लस 10 एंड t² प्लस 10। करना है। तो ये t² = कैन आई से 90/10, 45 2 सा 90 डिवाइड बाई 10 हाँ 9, तो t क्या मिलेगा हमको। 3 तो अब टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस 5 सेकंड। 5 सेकंड। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स आपको। यस हाँ सर। सर तो 2 + 5 मतलब 2 + 3 मतलब 5 सेकंड आंसर आ। 5 सेकंड। तो फ्रेंड्स आपको ये पता चला ये क्वेश्चन के कि किस टाइप के क्वेश्चन किस लेवल पे आपको सोचना होता है यहाँ पे। हाँ यस सर। सर यस सर। तो फिजिक्स है ना बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हो, शांति से सोचने का ट्राई करते हो, आराम से उसको अप्लाई करते हो, फॉर्मूला थोड़ा टाइम देते हो, तो ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट अगर आप गद्दारी करते हो आपके साथ, फिजिक्स के साथ, तो आपके साथ भी गद्दारी होगी। मतलब आप उसको सिस्टमेटिकली अप्रोच से आपको सॉल्व करना है इसको। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। यस सर सर सर। तो यहाँ पे सेम मेथड है, सेम टू सेम मेथड है, पहले अपवर्ड डायरेक्शन की बात किया हुआ है, तो वो हाइट मिल गया 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिखाया हुआ कि भाई हम 2 टाइम फाइंड करेंगे, ऊपर जाने का टाइम t1 फाइंड करेंगे, नीचे आने का t2 फाइंड करेंगे। तो पहले ऊपर जाने का t1 2 सेकंड मिल गया, नीचे आने का 3 सेकंड मिल गया, तो टोटल टाइम = 5 सेकंड। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। यस सर तो अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बाकी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस करना बाकी है। ऐसा ही मजा आएगा अगर आप साथ में सोचोगे तो। बट आज का सेशन जो है वो मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टूड, यू एंजॉय दिस फिजिक्स। आज सेशन में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स। बाय सर। ओके फ्रेंड्स, अभी जो चैप्टर नंबर, जस्ट वेट, डोंट गो एनीवेयर फ्रेंड्स, डोंट लीव द सेशन। अब सेकंड चैप्टर जिसका बाकी है, बहुत ही आवाज आ रही है, धनपाल प्लीज। ओके, जो सेकंड चैप्टर बाकी है उसके लिए अगर सेकंड चैप्टर के लिए इफ आई विल टेक द लेक्चर टुमारो, मतलब कल अगर मैं 1 o'clock को लेता हूँ, सो विल इट बी कन्वीनियंट टू यू। यस जिन लोगों का सेकंड यस चैप्टर, सर। यस सर। जिन लोगों का सेकंड चैप्टर बाकी है, तो उन लोगों के लिए क्या 1 to 2:30 ले सकता हूँ मैं लेक्चर। यस सर। तो हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ के टॉपिक पे पहुंचे हुए हैं।
लास्ट में हमने वो प्रेफिक्स एंड सफिक्स के डिस्कशन किए थे, मिली, सेंटी, मेगा एटसेट्रा, राइट? एम आई राइट? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, Yes, sir. यस सर। उसके बाद सब कुछ बाकी है। तो जिन लोगों का सेकंड चैप्टर बाकी है, तो they can join, and the students who wants to revise, they can join at that 1 o'clock tomorrow. Is that clear to you? सर प्रॉब्लम, बोलो प्रॉब्लम। सर लेक्चर है, किसका लेक्चर है? मैथ्स का है, कितने बजे है? 2 बजे। किसका किसका है? हार्दिक कांति। ओके, तो एक काम करते हैं, क्या मैं उसको 12:30 से 2 बजे तक कर सकता हूँ? हाँ Yes, sir. Will it be convenient to you? Is it यस सर। Is it okay? Yes, sir. ओके, तो आज मैं अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ। आप फ्रेंड्स प्लीज फिजिक्स को साथ साथ में करिएगा। सर बोलो। सर सैटरडे का स्कूल का टाइमिंग क्लैश हो रहा है अब मैं कितनी बार टाइम चेंज करूँ, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। अब कहाँ से ये शेड्यूल आ गया? तो बच्चे को तो पूछ लिया था स्कूल का टाइम क्या है। अब स्कूल हमारी अब अभी ये मंडे से ही चालू हुई है इसलिए। विल चेक आउट ऑन द थर्सडे मेरे साथ, थर्सडे कुछ बात करेंगे उसके बारे में। ओके ओके सर। तो अब कल का लेक्चर 12 o'clock का है। ओके Okay, sir. आज का सेशन सर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।